Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and I'm here and I'm just going to wait till it's 6 o'clock, and in the meantime I'll just see if there are people online. So I'll just check whether there are people live, and in the meantime just guess what today's session is about. Okay, so actually I'll have to mute it from the other side so I don't hear any um, messages from that side. Okay, just trying to set it up. Okay, so I can see myself live on the other side as well. So now I'm just going to wait, and it's still 4 minutes till 6. Until that time, whoever is online, you can always let me know what you think about this topic. What is it about? So I can leave a message on Facebook. Okay, that's what I'm going to do, so I can see people over here. Okay. So I'm just going to post it on my other platforms as well, so everyone knows I'm online. And thank you so much whoever is watching at this time, to let me know where you're signing in from. Okay, I'm just posting it, or you just saw my caption of being live, so you just came over here. Okay, so let me just check out. Yes, so whoever this is, where are you signing in from? Are you from Islamabad or Pindi or from any other place? Do let me know in the comment box. Okay, right. So I guess it's better I just start my session, and let's see what goes from here. Okay, what do you think this topic is about? Come on, any suggestion? गलत मलत जो भी आता है बस बता दें. Thank you so much, ma'am, for joining in. So I was just trying to, ask the audience what they think this topic is about. आपको तो अंदाज़ा हो ही गया होगा, आप भी बता दीजिए. Okay. So I'll just wait and let me see if someone can come up with anything. So there are two captions, and before these captions, in fact after them, there are dots. So it means it's not the full statement, it's again a disguise. And actually the caption is disguise, but today I haven't used any filters. So you might be seeing कि पीछे की जो light है वो भी बहुत ज़्यादा blazing नहीं है, and I'm not applying filters on my face as well. So there are days when I think there should be not any filter, so I just try to be myself and come live myself. Well, most of the time I am myself except those filters. So acha, now what I plan to discuss today, it's basically a quote that I wrote, and I wanted to explain that quote. And the quote is basically your attitude in life, it determines what is going to be the direction of your life. So if you choose positivity, you will find yourself on the path to success. So this is the quote which I wrote, and I thought, why not discuss this quote. Now if any of you want to discuss this quote, thank you Sikandar Ali Shah for your gesture. And so if anyone of you want to express yourself as far as this quote is concerned, you are more than welcome to dropping your suggestions in the comment box and feed box. And as I go along, I will keep on taking your comments or whatever suggestions you have over here. अच्छा, so जब हम इसको जो है देखते हैं कि your attitude determines your direction in life, so सबसे पहले हमारे जहन में क्या चीज़ आती है?
मेरे जहन में तो सबसे पहले चीज़ ये आती है कि हमारा जो माइंड सेट है इट्स अ कंपास। जिस तरह एक कंपास जो है, वी यूज़ अ कंपास फॉर एक्सप्लोरिंग पर्पसेस, या इवन इफ वी आर एडवेंचरिंग समवेयर, वी टेंड टू टेक अ मैप और अ कंपास, जो कि हमें डायरेक्शंस जो है ना पिन पॉइंट करता है। इसी तरीके से हमारा जो माइंड है या हमारा जो माइंड सेट है, वो जो है हमें गाइड करता है। और माइंडसेट में भी ये कि जो हमारा एटीट्यूड है, दैट acts as a compass, and that guides us through our journey, whatever journey that is. So जब तक हम जो है अपनी जर्नी अचीव नहीं कर लेते, तो हमारा जो माइंड सेट है विच इज़ वर्किंग एज अ कंपस, तो वो हमें जो है गाइड करता रहता है। और ये है कि जिन लोगों का पॉजिटिव माइंड सेट होता है, उनकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ मोस्टली, थैंक यू रईस नसीबुल्ला फॉर योर कमेंट, थैंक यू सो मच। अच्छा, सो अगर पॉजिटिव माइंडसेट होता है तो फिर आपकी जो जर्नी होती है, नो डाउट उसमें तकलीफ और पेन्स होती हैं और स्ट्रगल्स होती हैं एंड एवरीथिंग, बट स्टिल जो एंड रिजल्ट है दैट इज़ सक्सेस। बट अगर आपका माइंडसेट, आप देखते हैं कि भाई, बल्कि बहुत दफ़ा आपने देखा होगा, सिर्फ देखते ही नहीं है, कि आप जब कोई काम स्टार्ट करते हैं, अगर आप उसको अप्रोच पॉजिटिव वे में करते हैं, रादर देन आप उसके बारे में सोचें, कुछ नेगेटिव सोच लें, या ये सोचें कि नहीं भाई ये तो मैं काम कर ही नहीं सकती, तो ये तो जो है इतना मुश्किल है, इसमें ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, तो आप ये देखेंगे कि वो काम वाकई नहीं होगा। रादर कि आप अगर जो है एक काम स्टार्ट करते हैं, यू टेक द चैलेंज एंड यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट दैट चैलेंज, एंड यू आर वेरी एक्साइटेड कि आपने उस चैलेंज को पुल थ्रू करना है। सो उसका रिजल्ट क्या होगा कि यू विल बी एबल टू पुल थ्रू दैट चैलेंज एंड यू विल बी सक्सेसफुल एज वेल। सो ये सारा जो है ना फ़र्क होता है माइंडसेट का, कि क्या आपका माइंडसेट पॉजिटिव है या आपका माइंडसेट नेगेटिव है। अच्छा, जब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो दिस अगेन डिपिक्स ग्रोथ माइंडसेट एज वेल। वो हम आगे जाकर बात करेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट में जो है क्या चीज़ें आती हैं। अगर हम जो है मज़ीद आगे चलें, तो हमारा जो एटीट्यूड होता है वो ऑल्सो इफ़ेक्ट कर रहा होता है हमारी डिसीजन मेकिंग को। इट्स लाइक इट्स इन्फ्लुएंसिंग। अब वो किस तरह इन्फ्लुएंस करता है कि अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, आप कोई भी काम अप्रोच करना चाहोगे, और अगर आपके जो है पॉजिटिव माइंडसेट है या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, तो आप उसको एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर चल सकते हो, और उसका जो अमली जामा होगा दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इफ़ेक्टिव। और आपकी जो देन अगेन, नो मैटर जितने भी आपके डिसीजंस जो है चैलेंजिंग होंगे, यू विल बी एबल टू पुल देम थ्रू, यू विल बी एबल टू डिसाइड, क्योंकि जो आपका माइंडसेट है इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव। नाउ दिस इज़ मोर ऑफ अ ग्रोथ सेट माइंडसेट। अगर आपका जो है माइंड ग्रोथ माइंडसेट टाइप है, अब ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट ये होता है कि से लाइक, चलो मैं किसी और की बात नहीं करती, लाइक आई नो आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। अब उस क्रिएटिविटी में क्या है कि जब जो है, लाइक व्हेन आई लर्नड आर्ट्स, तो दैट वाज मोर ऑन पेपर, ऑन कैनवस, उसमें ऑयल्स का भी यूज़ था, उसमें जो है वाटर कलर्स भी थे, यानी उसमें स्पेसिफिक मीडियम्स थे। बट देन चूंकि आई एम क्रिएटिव, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग मोर देन दैट। आई डिडंट वॉन्ट टू जस्ट स्टिक ऑन दी पेपर और द कैनवस और द ऑयल्स एंड पेंट्स। आई वेंट बियॉन्ड दैट, और उसको बियॉन्ड जाने के लिए व्हाट आई डिड was I learned how to do digital painting. Then I learned different modes of arts कि मिक्स मीडिया किस तरह की जाती है, या डिजिटल पेंटिंग में आपको जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एडोब है, इलस्ट्रेटर है, उसको आपने किस तरह यूज़ करना है। देन अब चूंकि जो है कैनवा की वजह से एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, सो दो आप उस तरीके से उस पर आर्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल ऑन अ टैबलेट और डिजिटली आप जो है पेन से और टैबलेट से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जो है ना ड्राइंग कर सकते हैं। एंड इट कैन बी एनीथिंग, एंड इफ़ यू हैव एन एप्पल आईपैड, तो वो तो प्रोक्रिएट में आप बहुत अच्छे तरीके से कंपोज कर सकते हैं। बट देन अगेन, अगर आपके पास नहीं भी है एप्पल आईपैड, तो हायून जो है इट्स ऑल्सो अ गुड ग्राफिक टैबलेट, आप उस पर भी कर सकते हैं। और अब तो इनफैक्ट हायून की जो है लेटेस्ट जो वर्जन है उसमें HD डिस्प्ले है, जिसमें आपका काम बहुत आसान हो जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, तो यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू स्टिक ऑन वन थिंग कि हाँ जी ये पेपर और पेन से ही होना है, और
आप कोई मीडियम यूज़ नहीं कर सकते. सो द मोर क्रिएटिव यू आर, द मोर ग्रोथ माइंडसेट यू हैव, द मोर चांसेस यू हैव टूवर्ड सक्सेस. और अब जितना जो एरिया है या जो हमारा लैंडस्केप है, इट्स मोर ऑफ मोर गेटिंग डिजिटल. सो डिजिटल स्पेस में वर्क करने के लिए यू नीड टू हैव दी स्किल्स. और जब आपके पास, थैंक यू तैयब तारिक फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड चौधरी रियासत अली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सो जितना आप जो है अपने आप को क्रिएटिव करोगे या नई स्किल्स सीखोगे, उतना ज़्यादा आप जो डिजिटल लैंडस्केप है या जो रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ ग्रोथ माइंडसेट. अब अगर हम स्टैग्नेंट माइंडसेट की बात करें तो ऑब्वियसली जो ग्रोथ माइंडसेट का ऑपोजिट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी स्टैग्नेंट. लाइक आप ये देख लें कि जिस वक्त कोविड आया तो देयर वर मेनी टीचर्स who used to teach traditionally, so they were very reluctant in opting for the online mode. So अक्सर जो टीचर्स थे उन्होंने तो जो है ना ख़ास तौर पे जो इसमें थे सरकारी जो है मॉडल स्कूल्स टाइप या कॉलेजेस में, सो उसमें जो स्टैग्नेंट माइंडसेट थे दे डिड नॉट ऑप्ट फॉर ऑनलाइन टीचिंग. इवन प्राइवेट में भी काफ़ी ऐसे थे कि जिनको इस्तेमाल ही नहीं करना आता था. बट प्राइवेट और जो सरकारी होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि प्राइवेट में द मोर money they are making, they are able to put in more effort into their teachers. So ये है कि वो privately जो है उनको sustain कर देते हैं अपने teachers को in terms of when it comes to, I'm sorry, just something in my eye. Okay, so वो उनको entertain कर देते हैं, they teach them from their own resources. But then again जो सरकारी होते हैं उनके initially इतने funds नहीं होते कि वो अपने teachers को उस तरीके से train कर सकें. But then again there are always option. Anyone who is into this field or into training, they can either give free training. And online training लेना कोई मुश्किल काम नहीं है. अब तो जो है everything is easy, everything is on YouTube. You just have to search the right thing and आपके सामने वीडियोस आ जाएंगे. You don't have to go to any person कि भाई मुझे ये चीज़ टीच करें. So you can always do that. But then again आप स्पेसिफिकली जो ख़ास तौर पे जो स्किल बेस्ड एक्सपर्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं वो आपको किसी एक्सपर्ट से सीखनी पड़ती हैं. और उसकी वजह यह है कि वो जो इनसाइड नॉलेज जो कि एक एक्सपर्ट आपके साथ शेयर कर सकता है वो शायद आपको यूट्यूब में या डिफरेंट वीडियोस पे देखकर ना मिले. But then again YouTube पे there are every kind of people who are putting their content over there, and you just have to skim through it कि भाई किसका जो है ज़्यादा यूटिलाइज आप कर सकते हैं या किसका ज़्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि there is so much on every platform. You just have to be careful, you just have to skim through and you just have to know कि जो आप जो है सीखना चाह रहे हैं is it available over there या is it authentic, then go for that. Okay. सो ये चीज़ हो गई हमारी डिसीजन मेकिंग के हवाले से. और इनफैक्ट ये हो गया स्टैग्नेंट माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया. अच्छा, अगेन आपका जो एटीट्यूड है अगेन वो आपकी जो है ना रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. अब वो किस तरह इम्पैक्ट करता है कि इट ऑल शोज़ कि आप जो है ना लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं. लाइक अगर आपका जो है पॉजिटिव माइंडसेट है and you are interacting with a lot of people, so you will try to drive out the positivity into people, since you yourself are a positive person and you try to think good about people and you try to bring out the best in people. So इसकी वजह से जो है positivity की वजह से you also think about the other people and you're looking at the positive elements in them. अब पता है बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि you are good at certain thing, but then again there are people जिनके साथ आप interact कर रहे होते हैं and they are good in their fields as well. So वो जो लोग होते हैं वो आपको जो है ना कोई नॉलेज की बात बता रहे होते हैं और आप जो है ना यानी it all depends on you how good you are या how you take people around you. अगर वालेकुम अस्सलाम साजिद अली. So if you just think okay yeah, people are trying to add something good in your life, तो rather than कि आप उनको जो है टोकें, आप उनको कहें कि हाँ जी मुझे इस चीज़ का पता है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. You can always listen to them and then you can add
few 1 or 2 things, जैसे जो है उनको भी अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा भाई ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, ये इतनी नाइफ नहीं है, इसको भी पता है इन चीज़ों का. सो इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल एंड इट इज़ ऑलवेज गुड. एंड देन अगेन इट शोज़ कि आप जो है उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग देयर कमेंट्स पॉजिटिवली. बट देन अगेन देर आर मेनी पीपल जो आपको जो है कोई अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जो पहली जो है ना जो इंस्टिंक्ट है वो आपको जो है नेगेटिविटी बताएगी कि नहीं, ये अगर मुझे बता रहे हैं तो इसमें जो है ना कोई जो है ना ख़राब चीज़ होगी या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी कि जो ये छुपा रहे हैं. सो ये जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है या एक आई वुड से दिस इज़ फियर. एक होते हैं ना फियर ऑफ अननोन, बट ये वो खामखा के फियर्स होते हैं कि विच यू डू नॉट लेट गो. अब अगर कोई आपको कोई अच्छी चीज़ बता रहा है या बता रही है तो उसका कोई नॉलेज होगा, कोई एक्सपीरियंस होगा, तो वो आपके साथ शेयर करें ना. तो यू शुड बी जेनरस. जिस तरह हम कहते हैं कि भाई पैसे खर्च करने में यू शुड बी जेनरस, बट पैसे भी वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत है. और जेनरोसिटी इज़ more in charity sense कि when you're doing charity you should have a generous heart rather than कि जो है चैरिटी करते हुए आपका दिल तंग पड़ जाए और अगर आपने जो है खाने पीने पे जो है स्पेंड करना है तो वो जो है आप हज़ारों में स्पेंड करते हैं. So you should be generous in sharing your knowledge as well. Okay, so relationships का जहाँ तक है, अगर when you are a positive individual तो आप जो relationships cultivate करते हो those are also positive. And if you are a negative person and if you thrive on toxicity और आप खुद भी जो है टॉक्सिक हैं, तो आपकी जितने भी जो इंटरेक्शंस होंगे ना वो भी नेगेटिव होंगे और आप टॉक्सिसिटी ही अट्रैक्ट करोगे. एक वैसे तो ये एक साइंस यानी लॉ है कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट. जिस तरह मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट के भी जो है नॉर्थ एंड साउथ पोल है ना, तो नॉर्थ एंड साउथ जो पोल है दे अट्रैक्ट, बट इस तरह नहीं हो सकता कि नॉर्थ नॉर्थ के साथ अट्रैक्ट करे या साउथ साउथ के साथ करे. सो इट्स ऑलवेज ऑपोजिट पोल्स. बट जहाँ तक जो है पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट की बात है, तो उसमें भी यही जो है लॉ फॉलो होता है कि if you have a negative mindset तो you are always going to attract negativity towards you. और अगर आपका positive mindset है तो you are always going to attract positivity. So the better the earlier you get into tone into this thing of positivity, the better it is for everyone rather than कि आप जो है negativity को invite करें या negative हो. अच्छा, फिर जो है इसमें एक मज़ीद जो चीज़ आ जाती है जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो आपका एटीट्यूड होता है, इट कल्टिवेट्स अ पॉजिटिव माइंडसेट या इट कल्टिवेट्स अ ग्रोथ माइंडसेट. और उसमें वही चीज़ होती है कि भाई जो ग्रोथ माइंडसेट होता है, आपको जो भी चैलेंजेस फेस होते हैं यू टैकल देम creativity with honesty with positivity and you try to learn from those opportunities. जो भी आपके पास opportunities हैं या जो भी environment है, you're trying to excel in that environment or you're trying to grow. No matter there are many times कि बहुत से ऐसी जो है वर्क कंडीशंस होती हैं जहाँ पर बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है, बट ये है कि अगर उस इन्वायरमेंट के अंदर रहकर भी आप कुछ लर्न कर रहे हैं तो देन इट्स वर्थ इट. एंड देन there are always time you can refer to those times. Now I remember मैंने जितने भी जो है private and public जो है jobs की, उसमें हर job में यानी there is no job, there is not one job जिसका मैं कह सकूं कि भाई ये job जो है 100% अच्छी थी. मोहम्मद सुहेल, thank you so much for watching this session and joining in. So कोई जॉब परफेक्ट नहीं होती. आपने अपने लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है और वो इन्वायरमेंट ज़्यादा ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो. नाउ ओवर लाइक मेरा जो 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, तो उसमें मैंने हर जॉब में जो भी मैंने जॉब की उसमें मैंने कुछ नया लर्न किया और वही लर्निंग है जो अब मुझे जो है इट हेल्प्स मी इन सर्वाइविंग इन दिस इन्वायरमेंट. वसीम अब्बासी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. तो आप जो है अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या अपनी लर्निंग्स होती हैं या अपने जॉब एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप उनसे कुछ ना कुछ नया लर्न कर रहे होते हो. और ऐसा नहीं होता कि भाई आप कहो कि भाई मैंने ये फ़लानी जॉब की और मैंने उसमें से कुछ नहीं लर्न किया.
you keep on learning. So learning is the essence of our life. और जो पॉजिटिविटी है दैट इज़ मच मोर कि हम अपने आप को किस तरह ट्यून करते हैं या किन लाइंस पे ट्यून करते हैं. सो द अर्लियर यू बिकम पॉजिटिव, you will have a positive direction towards life and it's going to be rather easier for you to achieve your goals. अच्छा, अब हम आगे जो है मज़ीद बात करें तो हमारा जो एटीट्यूड है, लाइक वॉट एवर एटीट्यूड दैट इज़, इट बेसिकली तो इट हैज़ टू बी पॉजिटिव. सो इफ़ इट्स पॉजिटिव तो आपकी जो भी जो है फुलफिलिंग प्रोफेसी है या जो भी आपके गोल्स हैं, you are able to achieve those goals if you have a positive mindset. But if you do not have a positive mindset तो आपके जो goals हैं वो दूर 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 होते जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है ना बहुत से ना ब्लॉक्स आते जाते हैं जिनको हम जो है यानी अगर जो है एब्स्ट्रैक्ट सेंस में कहें तो सक्सेस ब्लॉक्स कह सकते हैं. जिस तरह जो राइटर्स हैं, राइटर ब्लॉक्स होते हैं. सो ये जो है सक्सेस ब्लॉक्स होते हैं व्हेन यू आर अनएबल टू अचीव योर गोल्स, या आपकी जो एक ड्रीम है, यू आर अनएबल टू अचीव दैट ड्रीम. सो it's always better कि भाई if you want to achieve your goals you have to remain positive, you have to have a positive attitude towards life. अच्छा, अब हम अगर आगे मज़ीद बात करते हैं तो you need to have adaptability and resilience. अच्छा, अब वो किस तरह आप कर सकते हैं? वो आप इस तरह कर सकते हैं कि जो आपकी पॉजिटिविटी है वो एनहांस करती है adaptability. So if you are positive you tend to adapt to the circumstances rather than कि भाई आप circumstances को अपने मुताबिक जो adapt करो. You will adjust into those circumstances. Like there are times जब आप कोई नई पोजीशन ज्वाइन करते हैं या कोई नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनका एक सिस्टम है जो कि चल रहा होता है. सो आप बजाय कि उस पूरे सिस्टम को अपने मुताबिक मोल्ड करो तो उनका जो भी सिस्टम होता है आप उसके मुताबिक मोल्ड होते हो. सो इन द एंड रिजल्ट क्या होता है कि व्हेन पीपल सी कि ओके भाई ये जो है इस तरह इनका काम करने का स्टाइल है, तो अगर उनके सिस्टम में कोई चीज़ नेगेटिव होती है तो बहुत से लोग हैं जो आपके जो वर्क पैटर्न होता है या आपका जो स्टाइल है काम करने का उससे लर्न कर रहे होते हैं, एंड दे आर prone to change according to that if that's positive and if it leads to positivity and overall well-being. So people do tend to change, but again वही बात है कि it all depends कि आप जिनके लिए काम कर रहे हो how positive or how what kind of growth mindset they have. Do they have that growth mindset or they don't have? क्योंकि अगर उनका growth mindset नहीं होगा तो आप अपने growth mindset के साथ जो है grow करते जाएंगे and you might even end up in some bigger position rather than just sticking to that particular position. But you need to learn from whatever situations you have and then change accordingly, या see better opportunities for yourself. अच्छा, एक ये चीज़ हो गई. फिर इसके बाद ये है कि आपका जो एटीट्यूड है वो आपको ऑल्सो हेल्प करता है रिगार्डिंग योर हेल्थ एंड वेलबींग. और वो किस तरीके से वो कर सकता है आपको, वो इस तरीके से कर सकता है कि when you have a positive mindset you are always focusing on your mental health and your physical health as well. Mental health में you'll be prone to talk with people who are positive minded या who share your philosophies about life, या who shares your goals about life or your visions or your aspirations. So you will always feel comfortable being in their company rather than कि आप जो है किसी ऐसे बंदे से बात करें या ऐसी बंदी से बात करें जो कि सिर्फ जो है नेगेटिविटी जो है बयान करें, या सिर्फ जो है जिनके गिले शिकवे हों, सास ने ये कर दिया, मियाँ ने ये कर दिया, भाई ने ये कर दिया, फैमिली से आप तंग हो तो दिस एंड दैट ना. तो देर आर सो मैनी थिंग्स. सो हर घर के अपने मसाइल होते हैं. सो इंस्टेड ऑफ सिटिंग विद सच पीपल जो कि आपको भी ड्रेन आउट करें, क्योंकि there is no one in this world who does not have problems. Everyone has problems. Everyone has their own devils to fight with. So यह है कि when you are in public, instead कि आप जो है अपने lashes जो है किसी और पे निकालें या अपने devils किसी और को show करें, it's always better to have a conducive environment. Try to adapt according to the environment, try to be positive. और यह है कि अगर बहुत ज़्यादा जो आपको issues हैं and you find some person in the office or even in your friends or wherever, you can always go and share with them. In fact
आई वुड से कि यहाँ पर तो आई डोंट नो, इतना यहाँ पर तो मैंने प्रैक्टिस नहीं देखी एक्सेप्ट जो काउंसलिंग होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, उनमें ये चीज़ होती है कि पीपल who need counseling they always go and have sessions with them, बट बाहर मैं ये देखती हूँ कि वहाँ कम्युनिटीज़ बनी होती हैं। यहाँ पर कम्युनिटीज़ बाहर होती हैं बट ऐसा सच नज़र नहीं आती हैं, एंड आई डोंट नो कि इस तरह की कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है कि where you can have get togethers and you can go over there and you can share whatever is going on in your mind. आपको किसी किस्म की डिप्रेशन है, आपको जो भी है, तो you can always have that community, a community of friends, of like minded people as well, and you can go in those communities और आप share कर सकते हैं। और वो इस तरह का नहीं होता कि भाई कोई आपको उठाकर जो है उस बात का जो है ताना दे देगा कि भाई आपका जो ये बैकग्राउंड है या आपने ये किया या आपने वो किया। सो वी नीड टू हैव सच कम्युनिटीज इन आवर इन आवर ओन लोकल सेक्टर्स। जिस तरीके से जो है डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, कोई किसी काम का जिम्मा लिया होता है, किसी ने किसी काम का जिम्मा लिया होता है। सो when we have such kind of communities, so people will be more prone to share whatever is going on with them या उनको जो भी problems है, rather than going to the counselors or the psychiatrists or the psychologist, या जो है ख़ास तौर पे टाइम लेकर जा रहे हैं। क्योंकि जब आप like I won't say it's bad, it's not bad, क्योंकि it's just that कि भाई हर एक की जो है एडिक्शन, हर एक की environment, हर एक की जो problems हैं, they differ from person to person. um, there are people who need psychiatrist help, then there are people who need counselors help, but then again there are just normal people who just need someone to talk to. So उनके लिए they don't need to go to counselors or psychiatrists. अगर उनके अपनी family में या अपने friends में कोई है जिनके साथ वो talk out कर सकते हैं, तो it's always good. So we need to have these communities and लार्जर इन साइज, यानी हर सेक्टर के जो है एक ना एक कम्युनिटी हो, एक ना एक दिन हो जहाँ पर सारे आ सके एंड दे कैन डिस्कस आउट वट एवर देयर प्रॉब्लम्स आर। एंड और फिर जिस वक्त जब सब लोग मिलकर बैठते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके सॉल्यूशंस जो है सामने होते हैं, बस ये है कि यू जस्ट हैव टू पिन पॉइंट कि ओके दिस इज़ द वाइबल सॉल्यूशन एंड यू कैन ऑलवेज फॉलो दैट। सो दिस इज़ रिगार्डिंग हेल्थ एंड वेल-बीइंग। अच्छा, देन एक और जो हम बात करते हैं इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, वो भी इसी में आ जाता है कि व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट तो यू आर प्रोन टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल, no matter whatever you're doing, whatever your cause is, whatever your mission is, even if it's a small mission. अगर आपका mission सिर्फ ये है, like if I talk about myself, I just want to educate people in the positive direction. I want to share my knowledge which I have learned over the years, for which I have paid a handsome amount to gauge this knowledge. Now it's my turn to give back to the community. So either I can give back like giving these live sessions, or I can do paid sessions as well. Depend करता है किसकी क्या requirement है या क्या need है, so I can always do that. But this is this is how I'm sharing my knowledge with you. और ये जो knowledge है, these are all insights which I have faced over the years, या जो भी मेरी life journey रही है, या जो भी मेरे practical या field experiences रहे हैं. So I just tend to share those experiences with everyone. So and this is the way you can inspire people, and this is how you can motivate. और motivation के लिए like you don't have to be a motivational speaker. आपकी just जो simple views about life and those can also be motivating. Okay, thank you so much Abdul Razak for your messages. Thank you. So this is as far as inspiration and motivation is concerned. अच्छा, then हम अगर एटीट्यूड के हवाले से बात करें तो एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विच वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, इट्स लाइक वी हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट. अब आप जिस इन्वायरमेंट में बात करें, अगर आपके इर्द गिर्द जो सारे टॉक्सिक लोग होंगे तो it would become difficult for you to deliver your message, क्योंकि everyone is going to be thinking negative. So बढ़िया है कि उस negative environment में if you are able to deliver something positive, then
जो एक क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि देन पीपल वुड नो कि भाई द वर्ल्ड इज़ नॉट फिल्ड विद negative people, there are also positive people. Yeah, there are people who want to make a positive change in the society, and that's how they are creating positive environments. अच्छा जी, so ये चीज़ें थी। और इसके अलावा एक और जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि यू नीड टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप पॉजिटिविटी ही डिलीवर कर रहे हैं, स्टिल you need to continuously improve upon yourself, learn new skills, interact with more and more people so you can understand them in a better way। चाहे आप उनके behaviors understand करें, चाहे आप just उनको जो है एज ए नॉर्मल पर्सन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो देर आर सो मैनी पीपल, हर एक के जो है अपने इश्यूज होते हैं, अपनी वाइब्स होती हैं, अपने जो है उनके माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं। सो यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड दैम while you're interacting with them, and then you can also address कि भाई like if you are able to do that, you can always address their issues and provide them a viable solution। so इसी तरीके से जो है ना societies जो है exist करती हैं, and people exist in society। we cannot exist as an individual। जिस तरह वो कहते हैं ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, सो दिस इज़ वेरी मच राइट। कोई भी सोसाइटी इंडिविजुअलिटी, शमसुल हक थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सो कोई भी सोसाइटी जो है इंडिविजुअलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वी नीड पीपल टू इंटरेक्ट विद, और वही जो एक इंडिविजुअल होता है दे फॉर्म अ सोसाइटी। सोसाइटी से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से जो है देन कम्युनिटी से लोग बनते हैं, देन कंट्रीज बनती हैं, एंड देन इट कीप्स ऑन गोइंग। सो इट्स अ चेन। एवरीथिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो एवोल्यूशन है, दो दे स्टार्टेड एज सिंगल, बट ये है कि सिंगल से होते हुए जो है दे केप्ट ऑन मल्टीप्लाइंग, एंड नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन इन एवरी फील्ड या in every sphere of this earth around the globe। so this is how people exist। when you exist in when you try to exist as a individual, you cannot take everything on your shoulder। but if you try to interact with people, like minded people, देन आप देखेंगे कि भाई आपके बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे लोगों के साथ, और आपको उनके साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी, एंड देन जो न्यू आइडियाज़ हैं दे आर गोइंग टू कम इन टू बी, एंड यू विल बी एबल टू परसू योर गोल्स और मीट योर डेडलाइंस, या जो भी आपके जो है जहन में ड्रीम्स हैं, यू विल बी एबल टू फुलफिल देम एज लॉन्ग एज यू हैव गुड people around you जिनसे आप सीख सकते हैं, वो आपसे सीख सकते हैं, and new ideas can emerge out of it as well। so this was all what I wanted to discuss with you today, कि you need to have a positive attitude in your life, और यही attitude है which is going to map your direction towards your journey। so now I'll see if I can bring anyone on camera, and if anyone is willing to come on camera as well। Shamsul Haq, I'll try to bring you on camera क्योंकि आपका मुझे आ रहा है, so I cannot add you, I'm sorry। then I'll see Chaudhry Riyasat Ali। okay, I'll see if I can bring you on camera। अच्छा जी, ये ऐड हो रहा है, so जब ऐड हो रहा होता है तो मेरी आवाज वैसे डिस्टर्ब हो जाती है। आई जस्ट सी इफ ही कैन जॉइन इन, एंड इफ नॉट तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। एवरीवन डज नॉट like to come on camera, okay, so it's adding